Okay, now introduction. First of all, these are the contents which we are going to study in the chapter. First is introduction. We will see the introductory part. Then what is biodiversity? Then flora and fauna. What is flora and fauna? Then what is forest? Types of forest which are found. Then vanishing forest, like forests are vanishing. You already know this. Vanishing means they are declining. Then what is wildlife species which are found? Then cause of extinction or depletion of flora and fauna. So basically, I think all of you are already aware about all these topics, like what is flora and fauna, what is biodiversity, and you already know that forest and animals and plants are already declining, खत्म होते जा रहे हैं, extinct होते जा रहे हैं. उसके पीछे क्या कारण है, and what are the government strategies to conserve our natural resources, because forest and wildlife are very important natural resource for earth. अगर ये खत्म हो गया तो ह्यूमन बींग्स भी जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Now next, fact file, need to conserve forest and wildlife, conservation of forest and wildlife. ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, रोल ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन, देन प्रोजेक्ट टाइगर. तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. नाउ इंट्रोडक्शन. दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. Now the planet Earth is the house of millions of living organisms, starting from microorganisms like bacteria to huge creatures like banyan tree and elephants. So you know that on Earth you will find minute or microorganisms like जो भी आपके algae होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है. तो ये छोटे छोटे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे लेकर आपके बड़े जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जो ह्यूमन बींग्स हैं या एलिफेंट्स हैं, आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, घास से लेके बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे. तो ये डिफरेंट स्पीसीज आपको अर्थ पे मिलती है. सो द बायोस्फीयर इज फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. So first of all, you need to understand the word biodiversity. Biodiversity is made up of two words. One is bio and the other is diversity. So bio means आप जानते हो, bio means living, life. All right. तो आप biology पढ़ते हो, आप bio पढ़ते हो. तो what is bio? Earth is known as biosphere. Why? Because it has life in it. All right. So bio word means life and diversity means different types. So different types of life is known as biodiversity. And you know, on Earth, not only ऐसा नहीं कि Earth पे सिर्फ human beings ही पाए जाते हैं. Number of millions and millions of species of plants, animals are found on Earth, and ऐसी बहुत सारी species हैं about which we are not aware till now. उनके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है. So flowering plants हैं, आपके different types के trees हैं, plants हैं, scrubs हैं, shrubs हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं. Then different number of animals आपके जो है पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर. तो there are number of monkey है, elephant है, उनमें भी variety है. ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें भी काफी वैरायटी है. कोई नीग्रो है तो कोई आपका कोरिया है, कोई चाइनीज टाइप का दिखता है, तो कोई यूरोपियन है, तो कोई एशियाटिक टाइप का दिखता है. इंडियन वैरायटी अलग होती है ना. तो क्योंकि हम भी एक क्या है, हम भी ऑर्गेनिज्म ही है. ठीक है. वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स. लाइक जैसे हमारे दूसरे एनिमल्स हैं, बस हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है. दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग क्लोथ्स, वी आर लिविंग इन अ हाउस, वी आर ईटिंग प्रॉपरली, वी आर इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, वी आर डेवलपिंग न्यू थिंग्स डे बाय डे. Because we are more aware, we have more mind, our mind is more developed than other organisms. लेकिन हम भी एक organism ही है. All right. So earth is full of life, and life, वो भी life ऐसी नहीं है, बिल्कुल diversity है. Different varieties of flora and fauna are found on earth. Human beings along with other organisms form a complex web of ecosystem which is mutually exclusive, and all organisms depend upon each other for their existence. And on earth, each and everybody is dependent upon each other. Human beings are dependent upon plants, plants are dependent upon nature, natural things. Animals are dependent upon plants. So all this complex system is known as ecosystem. Dependence of biotic या फिर relationship between biotic and abiotic components of the environment, and their interdependence and interrelationship is known as ecosystem. ठीक है. जैसे कि आपका डेजर्टिक इकोसिस्टम है, आप जानते हो डेजर्ट जो होता है वहां पे भिन्न प्रकार के आपके जो है एनिमल्स पाए जाते हैं. जो एनिमल्स वहां पाए जाते हैं वो आपके अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, या फिर वहां पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू घने जंगल. जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है या जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उनमें अलग वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की.
तो ये डिफरेंट आपके क्या होते हैं, इकोसिस्टम होता है। आपने एक्वेरियम देखा हुआ है, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है, बट दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पे जो है फिशेस के रहने के लिए सारा वहां पे इंतजाम किया गया है, पानी है वहां पे उनके लिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाए गए हैं। आप जानते हो मार्बल टाइप के छोटे छोटे वहां पे रखे जाते हैं, कंकड़ पत्थर, ताकि उन्हें बिल्कुल लगे कि वो नदी में है। तो दैट इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसी तरह से आपका जो है मरीन इकोसिस्टम होता है, आपका वाटर इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम होता है, आपका डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। बिकॉज हर जगह की जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, बट ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इन्वायरमेंट हमसे उसका जो है एक रिलेशन है। हम अपने इन्वायरमेंट से, हम अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के पशु पक्षियों से हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम जो करते हैं उनका असर उनके ऊपर भी पड़ता है, वो जो वहां पे उनके साथ जो होता है उसका असर हम पर भी पड़ेगा। सो ऑल आर इंटरलिंक्ड, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। आप ये मत सोचिए कि हम पेड़ काट दें या हम इस पशु को मार दें या चलो खत्म हो गया तो हमें क्या करना है, आज नहीं तो कल हमें उसका जो है कोई ना कोई नतीजा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो all are interdependent on each other. For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food, without which we cannot survive. So आपको पता है कि जो plants, animals and जो microorganisms हैं, वो आप जानते हो फूड चेन, फूड वेब का हिस्सा होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सो यस, तो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट फूड चेन सिस्टम, दैट हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन थ्रू photosynthesis, energy is received by the plants, then from plants when we consume, जो हम है या फिर animals है, when they consume plants, some 10% of energy is transferred to us, then 10% उससे आगे जाता है, this is known as trophic level। ठीक है ना, ये आप सबने पढ़ा होगा कि हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर, 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सो आप जो पानी देखते हो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन, उसमें ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट बैड, लाइक कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो पानी को जो है साफ करते हैं। देन आप जानते हो जो कर्ड बनता है उसमें भी अलग तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं। तो हर चीज का बैक्टीरिया होंगे या जो भी होंगे, अभी मुझे इतना साइंस का याद नहीं आ रहा, तो जो भी होगा आपको पता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आर लाइफ। दे मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एयर, वाटर, है ना, सबको वो जो है बेहतर बनाते हैं, सॉइल को जो है फर्टाइल करते हैं। लेग्यूमिनस, आपको पता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई ऑर्गेनिज्म कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना रोल है अर्थ के ऊपर, और किसी के बिना अगर कोई भी खत्म होगा तो हमें उसका जो है उसका जो रिजल्ट है उसको झेलना पड़ेगा। Now, what is biodiversity? As I told you, bio means diverse life, and diversity means different types of plants and animals. तो ये ऑलरेडी आप समझ चुके हो, मैं इसको रीड कर देती हूँ। द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। सो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस एरिया के लिए उसको हम उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक डेजर्टिक एरिया इज नॉट वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, दे रिसीव लेस रेनफॉल, बट द एरियाज ऑफ डेंस फॉरेस्ट लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी हाई इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आप एवरग्रीन फॉरेस्ट जानते हो जो कि इक्वेटर के पास है, या फिर हमारे इंडिया में वहां पर है जहाँ पे बहुत वर्षा होती है, जिसे हम वर्षा वन कहते हैं, बहुत अधिक वर्षा, तो वो बहुत घने जंगल होते हैं। तो जब घने जंगल होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी, प्लांट्स की, हर्ब्स की, मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं। देन वहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको मिलेंगी, बहुत सारे एनिमल्स आपको मिलेंगे, फ्रॉम रेप्टाइल्स टू मैमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू विल फाइंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। So evergreen forest of the world are considered the richest area in biodiversity. All the forests which are evergreen, they are highly rich in biodiversity. So biodiversity refers to the variety of life. It is seen in the number of species in an ecosystem or on the entire earth. So different, जैसे मैंने आपको बताया कि मंकी है, हमने कह दिया कि मंकी है, एलिफेंट्स हमारे पृथ्वी, इनमें भी स्पीसीज का डिफरेंस होता है। ऑलराइट, लाइक मंकीज में भी आपके डिफरेंट स्पीसीज हैं, लाइक गोरिल्ला है, तो आपका पता नहीं कौन डिफरेंट टाइप्स के आपके बंदर होते हैं। आपने कभी देखा होगा जू में या चिड़ियाघर में टाइगर्स है, टाइगर्स भी कई प्रकार के होते हैं। मतलब आपको देखिए जो ये कैट फैमिली है ना, कैट फैमिली में आपका लेपर्ड आ गया, कैट है, तो देन आपका जो टाइगर है, ये आपका जो लायन है, ये एक ही जैसे हैं बट दे आर डिफरेंट। सो डिफरेंट बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज।
आपके ही आप ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट स्पीसीज आपको मिलेंगी. ऑलराइट. So different species of plants and animals are found on earth. This is known as biodiversity. Now flora and fauna. What is flora? Flora simply means plant species and fauna means animals. तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड fauna means animals. The planet Earth is a beautiful place to live in. No matter where we go to the planet, on the planet, there are stunning plants, flowers, and animals that catch our attention. So wherever we go on the Earth, we will find different varieties of flora and fauna. Like when we will move to Canada or USA or any European nation country, then there the variety of plants and animals is different. वहां पे आपको जो पेड़ में हरे पत्तों की जगह आपको आप देखिएगा पर्पल फ्लावर्स दिखेंगे, आपको येलो, या फिर आपको मतलब डिफरेंट वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी. वहाँ पे फॉल सीजन होता है ना, सीजन मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही अलग पेड़ों से हरे पत्ते हट जाते हैं. तो वहाँ पे अलग आपको इंडिया में ये चीज नहीं देखने को मिलेगी. देन एनिमल्स वहाँ पे अलग वैरायटी की होती हैं. आप अंटार्कटिका में चले जाओ तो वहाँ पे डिफरेंट एनिमल स्पीसीज आपको मिलेंगी. ठीक है, तो हर जगह आपको डिफरेंट मिलते हैं देखने के लिए. तो बेसिकली प्लांट्स एंड लाइफ इज नोन एज फ्लोरा एंड एनिमल लाइफ इज नोन एज फौना. Now, flora. Flora is the term to denote plants of a particular region. It usually refers to native plant life present, but does not include new species that have been introduced as well. So, flora means अगर मान लो suppose ऋषिकेश से वो प्लांट पहले से पाए जाते हैं उससे हम फ्लोरा कहेंगे. लेकिन जो बाहर से आते हैं, जो कहीं और से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम उस एरिया के फ्लोरा में जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, because only native plant को माना जा रहा है. The flora of India is one of the richest in the world due to wide range of climate, typology and habitat in the country. इंडिया में आपको पता है कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा है, प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, बिकॉज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं, सीजन हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो है टाइपोलॉजी है. हमारे यहाँ प्लेट्यूज भी है, माउंटेन भी है, प्लेन है. तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड स्पीसीज पाई जाती हैं. 16,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इंडिया में पाए जाते हैं. आप देख सकते हो एग्जाम्पल. तो बहुत तो ऐसे जिन्हें हमने देखा भी नहीं होगा, आपने शायद देखा भी नहीं होगा अपनी लाइफ टाइम में. हम लोग जैसे क्या जानते हैं, हम लोग मैरीगोल्ड है या फिर लोटस है या फिर जो आपके रोज है, ये हम जानते हैं. ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स के स्पीसीज है जिन्हें हमने देखा भी होगा. Now, fauna refers to plant life of a particular area. Then over 81,000 species of fauna are found in India. India is home to several well-known large mammals of around 500 different species, along with species of insects, birds, reptiles, and amphibians. So India is very rich. Approximately, we have 81,000 species of fauna. एंड वो तो ये है जो हमने कैलकुलेट किया. अभी बहुत सारे ऐसे जिसे हमने कैलकुलेट नहीं किया है. तो हमारे देश में इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, रेप्टाइल्स सब पाए जाते हैं. एम्फीबियंस सब हमें देखने को भारत में मिलते हैं. नाउ व्हाट इज फॉरेस्ट? A forest is a large area of land covered with trees or other woody vegetation. Forests are the dominant terrestrial ecosystem of Earth and are distributed across the globe. So, forests are very important ecosystem and they are distributed throughout the world on the Earth. आपको हर जगह जो है फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. स्पेशली आपका जो इक्वेटोरियल एरिया है वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. एज यू विल मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो बदलता चला जाता है, क्योंकि जो है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एंड रेनफॉल रिसीव्ड बिकम्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, कम होना शुरू हो जाता है. आपको पता है कि मैक्सिमम वर्षा कहाँ होती है? नियर द इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज. जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो, 23.5 डिग्री से ऊपर आप गए दोनों ही हेमिस्फीयर्स में, तो आप अमाउंट ऑफ इंसुलेशन भी कम हो जाता है एंड रेनफॉल भी कम हो जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है. इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट की वैरायटी होती है वो भी बदल जाती है. फॉर एग्जांपल आप देखिए, इक्वेटर के पास आपको मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट. जैसे ही आप इंडिया में आएंगे, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो वहां पे कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे आपको? डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें पतझड़ होता है, जो हमेशा हरा भरा नहीं रहता. ये शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. ठीक है, तो देन उसके बाद आप ठंडे एरियाज में जाओगे, देन देयर यू विल फाइंड कॉनिफरस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, है ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टाइपोलॉजी, इकोसिस्टम, इस पर डिपेंड करता है. सो बेसिकली सी, फॉरेस्ट इज ए नेचुरल वेजिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस, फॉरेस्ट इज ए नेचुरल वेजिटेशन. इट ग्रोज ऑन इट्स ओन एंड देयर इज नो ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन. इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है. हम जाके जंगलों में पेड़ पौधे नहीं उगाते हैं. दे ग्रो ऑन देयर ओन, वो अपने आप से ग्रो होते हैं. जैसे अगर आप इक्वेटर के पास घने जंगलों में पहुंच जाओ, दे आर सो डेंस कि वहां पे एंटर करना ही मुश्किल है.
So natural forest, they are natural vegetation, they grow on their own without any human interference. तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े there you will find tall trees, shrubs, देन जो क्रीपर्स होते हैं, जो बेलें लटकती हैं, तो हर तरह की वेजिटेशन आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा. Now types of forest. Types of forest. First type of forest is tropical evergreen. Here we are talking about India. So tropical evergreen forest आपको मिलेगा. Evergreen forest क्या होता है? See, evergreen forest is all the types of vegetation are very directly related to the type of climate. जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही नेचुरल वेजिटेशन होता है और वैसा ही आपको वहां पे वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी. ठीक है, क्योंकि उस क्लाइमेट में जो सस्टेन कर जाता है उसी तरह का आपको वहां पे एनिमल और प्लांट लाइफ देखने को मिलेगी. फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड इन दोज प्लेसेस इन इंडिया विच रिसीव्स एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 400 सेंटीमीटर. जहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है और पूरे साल भर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती है, तो उसी एरिया में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा. क्योंकि जब साल भर बारिश होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होगी थ्रू आउट द ईयर, देन वहाँ पे पेड़ों को हमेशा पानी मिलेगा और पेड़ हमेशा हरे भरे होंगे. लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो आपका पूरा जहाँ पे मुंबई से लेके आपका पूरा जो कोस्टल एरिया है पूरा केरल तक, वो पूरा डेंस वेजिटेशन है. जो आपका वेस्टर्न घाट्स का एरिया, वेस्टर्न घाट का के वेस्ट का एरिया. देन आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे स्पेशली मेघालय, देन आपका और जो है मिजोरम, मणिपुर, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पे हैवी वर्षा होती है. देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है या फिर मॉडरेट से भी कम होती है, लाइक 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में. ठीक है, तो अब ये एरियाज जो है आपके कहाँ पे है? पूरा नॉर्थ इंडिया, लाइक यूपी, बिहार, पंजाब, देन बिहार और ये सब स्टेट्स ऐसे जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल जो बहुत घने नहीं होते हैं. आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आराम से एंटर कर जाएंगे. वन कहा जाता है इनको. ठीक है, पर्णपाती वन. तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, और भारत में सबसे अधिक ट्रॉपिकल थॉर्न कटीले वृक्ष जो होते हैं जिसमें कांटेदार पौधे होते हैं, लाइक आपका राजस्थान, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे आपको थॉर्न वेजिटेशन एंड स्क्रब्स मिलेंगे. स्क्रब जैसे झाड़ियां होती हैं, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, लाइक आपके अकासिया हो गया, नीम हो गया, डेट पाम हो गया, देन आपके जो बेर के पेड़ होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, कैक्टस हो गया. तो ये सारे पेड़ आपको मिलेंगे बिकॉज दीज आर ड्राई एरियाज. झाड़ियां मिलेंगी आपको, ड्राई एरियाज है ये, वर्षा बहुत कम होती है इसीलिए. देन आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन मीन्स जो आपके माउंटेनियस एरियाज होते हैं. सो माउंटेनियस एरियाज में अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, तो शायद मैंने आपको पढ़ाया तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाते हो, टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस. पहाड़ के नीचे के तलवों पर हैवी वेजिटेशन होता है, ग्रीन वेजिटेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते हो, टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस, पेड़ भी बदलने लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं जो कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. क्योंकि ऊपर जितना आप जाओगे उतना टेम्परेचर कम होगा, उतनी सर्दी बढ़ेगी, और बहुत जगह तो आपके पूरे जानते हो स्नो से कवर होता है, तो वहां पे टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस एज वी गो अपवर्ड इन द माउंटेन ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट. एंड देन लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है आपका? जो आपकी दलदल में होते हैं ना, जैसे कि जो आपके कोस्टल एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं. Now vanishing forest. So forests are declining. You already know this. The forest cover in the country is estimated at 78.29 million hectare, which is 23.81%. तो हमारे इंडिया में जितना भी टोटल लैंड एरिया उसका 23% जो है इज जस्ट ओनली इन द अंडर फॉरेस्ट कवर. और होना कितना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 33% होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, उसे काटा जा रहा है फॉर डिफरेंट पर्पजेस. The state of forest report does not differentiate. ये इतना वैनिशिंग फॉरेस्ट आप देखते जंगल कटते जा रहे हैं. Now what is wildlife? Wildlife means an area where undomesticated animals living in the wild, including those hunted for food, sport, or profit. Wildlife can be found in all ecosystem. Now what is wildlife?
इसे हम वाइल्ड लाइफ क्यों कहते हैं? वाइल्ड लाइफ मीन्स कि दोज एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, वो जो एनिमल जो जंगल में रहते हैं एंड दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, वो फ्रीली रहते हैं, अपना खाना खुद शिकार करके अपना खाना जो है उसे लेते हैं, और स्पोर्ट और जो है उसके लिए इनको मारा भी जाता है, खैर अलग चीज है। लेकिन वाइल्ड लाइफ मीन जैसे कि नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं वैसे ही आपके वाइल्ड लाइफ होते हैं, क्योंकि इन्हें हम अपने घरों में नहीं पालते हैं। दे फ्रीली लिव इन द जंगल्स, दे फ्रीली दे कैच देयर ओन फूड, और हंटिंग के थ्रू, जिस तरह से भी गैदरिंग के थ्रू अपना खाना खुद कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम इनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ये देख सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एक्ट एज ए वाटरशेड। फॉरेस्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट रेनफॉल, दे अट्रैक्ट रेनफॉल। आपको पता ही है कि बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे इनहेल कौन करता है? आपके जंगल करते हैं। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है कंट्रोल करने का काम कर रहा है फॉरेस्ट। जो आपका रेनफॉल होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का। दे आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। देन जो हमारे वाइल्ड लाइफ है हमारी, वो उनके लिए घर कौन प्रोवाइड करता है? जंगल। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो जितने घने जंगल होंगे उतने ही हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो बेहतर होगी, उतनी ही आराम से वो रह पाएंगे। दे गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये होता है दैट फ्रॉम फॉरेस्ट वी कैन डिराइव नंबर ऑफ हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, जिसे हम मार्केट में सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर हम वहां से लकड़ियां काट के लेकर आते हैं और जो है उससे डिफरेंट जो है चीजें बनाते हैं। दे हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल, सो दे हेल्प इन क्लाइमेट ऑल्सो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके जंगल होते हैं, जितने पेड़ होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो है जो एक रेगुलेशन होता है वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। वाइल्ड लाइफ हेल्प इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपको पता है पूरा फूड चेन आपको पता है कि खाना किस तक पहुंचता है, फिर उसके बाद लास्ट में जब मर जाता, जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, जब मान लो किसी की डेथ हो जाती है, चाहे एनिमल हो, जिसकी भी डेथ होती है, तो उसको वापस से सॉइल में मिक्स कौन करता है? जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? उनको डिकम्पोज करते हैं और फिर वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो पूरा इकोसिस्टम जो है बैलेंस रहता है वाइल्ड लाइफ के थ्रू। ऐसा नहीं कि जो आपके ऐसे, तो जैसे मान लो कोई पशु मर गया, कुछ ऐसी पड़ा हुआ है, तो वो सड़ेगा ही नहीं, है ना, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन उसे सड़ा के वापस इकोसिस्टम में मिलाने का काम किसका होता है? वाइल्ड लाइफ का, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका काम होता है। या फिर जो पूरा वाइल्ड लाइफ से ये भी कह सकते हो आप, जैसे कि आप जंगल में हो, तो जैसे डियर है, उसको खाता कौन है? शेर खाता है ना, या फिर टाइगर जो उस पर फीड करता है, फिर उसको कोई और फीड करता है उसके ऊपर। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलती रहती है। ये मेंटेन फूड चेन जो मैंने आपको बता दिया। दे ऑल्सो एक्ट एज ए मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। सो जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, हम जो जंगल सफारी के लिए जाते हैं टू सी एनिमल्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को देखने लिए जाते हैं, तो ये क्या? दिस इज पार्ट ऑफ रिक्रिएशन फॉर ह्यूमन बींग्स। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीसीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आप देख सकते हो। जो हमारे प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं, उसमें एक है नॉर्मल स्पीसीज। ठीक है, नॉर्मल स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन एम्पल अमाउंट, जो भरपूर मात्रा में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है और उनके खत्म होने के चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इन्हें हम नॉर्मली देखते रहे, लाइक आपकी नीम है, मैंगो ट्री है, जामुन ट्री है, या ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनको हम आराम से देखते हैं, वो खत्म नहीं होने वाले। कैटल्स है, गाय भैंस है, sheep है, goat है ना। So they are in present in ample amount. They are known as normal species. Species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, rodents, etc. They are often referred to as common species. So they are known as common species because they are present in a proper amount in on the earth and उनकी खत्म होने की chances नहीं है, मतलब उनका risk नहीं है, low, they are at low risk of extinction. Extinction का मतलब क्या होता है? खत्म होना। Extinct मतलब पृथ्वी से गायब हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये जो प्रजातियां हैं, ये इनके ऊपर कोई रिस्क नहीं मंडरा रहा है, क्योंकि ये एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन भी काफी फास्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये मतलब इनकी संख्या प्रॉपर है। एंड हेंस देयर कंजर्वेशन स्टेटस इज ऑफन ओवरलुक्ड। इसलिए इनका जो कंजर्वेशन का स्टेटस है उसको कई बार हम लोग अवॉइड कर देते हैं कि इनके तो कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब खतरे वाली स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, तो ये स्पीसीज ऐसी हैं जिनके खिलाफ अगर नेगेटिव फैक्टर्स चलता रहा तो ये बहुत जल्दी फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी। अब वो नेगेटिव फैक्टर्स कौन से हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ऑलरेडी नो आप, यू पीपल ऑलरेडी नो, लाइक डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग करना, फॉरेस्ट फायर है, या फिर पॉल्यूशन है,
तो ये सारे निगेटिव फैक्टर्स है जिनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, जंगलों को काट देना, हंटिंग कर देना, मार देना अपने फायदे के लिए। तो ये ऐसी स्पीसीज है जिनके ऊपर खतरा मट रहा है, क्योंकि ये स्पीसीज थोड़ी सी वैल्यूएबल होती हैं। ठीक है, या इनके हॉर्न से, या इनका जो सींग होता है, जैसे आप इंडियन राइनो जानते हो, उसका जो ऊपर का जो कवर होता है उससे चीजें बनती हैं। तो ये ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो इनको ज्यादा मारा जाता है और इसलिए ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच गई है। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज है ब्लैक बग, जो काला हिरन होता है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एश, इंडियन राइनो, लायन टेल मकाओ, ये बंदर है, संगाए, ये भैंस होता है एक तरफ का, बफेलो, रफलेशिया, ये मुझे नहीं पता क्या है, बाओबाब ट्री, तो ये ट्री का नाम है। तो ये देखो, जो भी पेड़ पौधे या फिर एनिमल स्पीसी जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, इकोनॉमिक जिनसे कुछ हम मनुष्य जो है कुछ बनाता है, कुछ बेचकर पैसे कमाता है, वही खतरे में पड़ते हैं। तो दे आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, सो देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग एंड ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स. So all the negative factors, if they will continue to operate at the same pace, then sooner or near, these species are going to be extinct from earth. That's why they are known as endangered species. Like these are endangered. Lion tailed macaw, देखो इसको कहते हैं. Now vulnerable species. Vulnerable species जो होती हैं, ये आपके endangered से कुछ पहले होती हैं, मतलब यही स्पीसीज आगे चल के एंडेंजर्ड बन जाती है. एंडेंजर्ड जो होता है वो लास्ट स्टेज पर होता है, वल्नरेबल उससे थोड़ा सा पहले होता है. वल्नरेबल स्पीसीज वो होती हैं जिनके, ये भी सेम वही चीज है कि जिनके खत्म होने का खतरा ज्यादा होता है. These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category. ठीक है, तो वल्नरेबल वो होती है कि जो अभी मतलब एक्सटिंक्ट होने से कुछ पहले ही स्टेज पर है. इनकी मात्रा जो है ठीक ठाक तो नहीं है, थोड़ा खतरे में ही है, लेकिन अगर इसी तरह से नेगेटिव फैक्टर्स अगर इनके खिलाफ कंटिन्यू रहे तो ये दे विल मूव इनटू द endangered category, and then from endangered they will be extinct from earth अमाउंट में. लेकिन अगर थोड़ा सा भी इनके खिलाफ ये जो फैक्टर्स है चलते रहे तो ये फिर आपका एंडेंजर्ड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी वल्नरेबल है, ये मतलब सबसे ज्यादा खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है. तो ये फिर किस पे पहुंच जाएंगी, एंडेंजर्ड पर. अभी तो इनकी मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इंडिया में अगर 50 टाइगर्स हैं तो इसका मतलब कि वो सेफ है, आपका वही सेफ नंबर है. अगर 50 से 49 हुआ तो मतलब वो स्पीसीज क्या हो जाएंगी, आपकी वल्नरेबल. और 49 से अगर 30 पे पहुंचा तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएंगी, है ना. इस तरह से ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है. तो वल्नरेबल मतलब क्या होता है कि वल्नरेबल वो कैटेगरी है जो अगर थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ हुई तो ये जो स्पीसीज हैं वो दे विल फॉल इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी. फॉर एग्जांपल ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गेंजेटिक डॉल्फिन, एलॉय, ये क्या मुझे नहीं पता, एग्लेई, बरबंधेरा, ये कोई प्लांट स्पीसीज है. तो ये जो है वल्नरेबल स्पीसीज है. इफ द नेगेटिव फैक्टर्स व्हिच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, if they will continue to operate same in the near future, then these species will fall into the endangered category. And endangered is तो आपका लास्ट स्टेज होता है, क्योंकि endangered के बाद तो फिर सीधा extinct. ये देख सकते हैं आप. Now rare species. Rare species are somehow they are different from above, जो अभी हमने दो डिस्कस की उनसे डिफरेंट है. रेयर वर्ड का आप मतलब समझ रहे होगे, जो ऑलरेडी बहुत कम मिलते हैं. ऑलराइट, rare species are those species which are found on the earth in very less number, and their biological rate of biological reproduction is very less. ठीक है, जिसमें आपको पता है कि ये एनिमल्स जो है ना, इनकी पैदाइश भी बहुत कम होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल रेट इनका बहुत कम है और ये ऑलरेडी बहुत कम पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर. तो अगर इनके खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. Species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. The example of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox, hornbill, parachute flower, pelican plant, etc. Rare species are generally considered threatened because a small population size is more likely not recover from things that could happen. तो जो rare species होती है हम तो already threatened species ही कहते हैं, because already rare. आपने सुना ना कि जो जड़ी बूटियां हिमालय में मिलती जो कि बहुत रेयर होती हैं, कि हमारी पैथोलॉजी में आपने सुना होगा कि ये जो है बहुत ही कम पाई जाती है. तो अगर वो ऑलरेडी कम पाई जाती हैं, अगर आप उनको और इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा भी अगर हमने उन्हें बिल्कुल अंधाधुंध इस्तेमाल किया तो फिर तो वो खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि उनका तो इतना मात्रा है ही नहीं. Similarly, there are certain animals
लाइक आप पांडा को जानते हो, देन हॉर्नबिल है, ब्राउन डियर है, दीज एनिमल्स आर ऑलरेडी रेयर एनिमल्स। एक तो इनका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत कम है, इतने इनकी जो बर्थ है वो इतना नहीं हो पाता है, फिर ये बहुत ही रेयर है, हर जगह पाए नहीं जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी निगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट हुआ तो ये जो है खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, दीज आर एंडेमिक स्पीसीज है, इसको हम अब कल की क्लास में करेंगे क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, मुझे आपकी अटेंडेंस भी लेनी है। सो एंडेमिक, या तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दीज आर द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। एंडेमिक मीन्स those species of plants or animals which are found only in certain areas, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे और उसी नाम से वो रिजेंबल होते हैं। जिसमें मैंने आपको अभी बताया देयर आर सर्टेन हर्ब्स व्हिच आर ओनली फाउंड इन हिमालय, तो वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर जो भी उनकी लैंडफॉर्म जो भी ऐसा है वो उसी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर सर्टेन एनिमल्स which can only survive in a particular area, like आपने पिजन नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसके जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, पेंगुइन्स, तो वो एंडेमिक है। वो आप चाहे हम की पेंगुइन्स को उठा के यहाँ पे लाएं ट्रॉपिकल एरिया में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम एग्जाम्पल इंडिया में कर दें तो अंडमान टील एक तरह का पक्षी होता है, अंडमान टील वो वहीं पाया जाता है, उसी के नाम से पाया जाता है। निकोबार पिजन, देखो उसी एरिया के नाम से इसका नाम भी रखा गया है। निकोबार पिजन कबूतर एक तरह का होता है जो निकोबार में पाया जाता है। अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल, मिथुन क्या होता है, एक तरह का बारहसिंगा होता है ना, तो वो वहीं पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश नेवाडा प्रिमरोज एक तरह का जो प्लांट स्पीसीज है, वैक्स फ्लावर एक्सेट्रा। The ecological state of species being endemic is known as endemism. So basically endemic species are those species which are found in a particular region only, और they will you cannot find them, या फिर आप चाहे कि हमने कहीं और लगा लें या कहीं उन्हें हम लाके और सर्वाइव करा लें तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो चिल्ड्रन, आगे का जो चैप्टर है उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे।